Hi, Damni, can you give me access? Damni, can you give me access? Okay. Good morning, everyone. So only 6 students have dialed in. So let's wait for a couple of more minutes. Okay. Only 6 students have dialed in. Let's wait for a couple of minutes before we kick off. We will start now. So I think what I could hello, am I audible? Yes, sir. You are audible. Good morning, sir. Thanks. Morning. If I recollect correctly, I think in the last class we were able to complete the balance sheet, and I think we were able to tally the balance sheet, correct? So is that right, Arpit? Guys, is that right? We managed to complete the balance sheet, correct, in the last class? Yes, sir. We have completed the balance sheet and today हम लोग को अभी आज ये करना था हम लोग को देखना था कंप्लीट कि इसमें क्या डाउट है और डाउट क्लियरिंग सेशन था आज. हाँ, correct. That's what I'm able to do. ठीक है. So let's start now. So
मैंने आपको हाँ रियल शेट पे है ना स्टैक्स में. सो हाँ जी. So let's start off with the assumptions. ठीक है. So assumptions में किसी को doubt, or let me take a step back and go back to the case only. हाँ जी. Case में किसी को doubt, कोई piece which you want clarification before we go to the Excel. It's purely your today and tomorrow is purely your agenda and session. It's a doubt clearing session. What I've done, I've split this into two parts so that you get more time rather than getting a full wasting 4 hour session. I've given you 2 hour, so that you get another day today after this class to look at this at length and come back tomorrow as well. Hanji, so anything in the case study before we move to the Excel? कुछ पूछना है, कुछ doubt हो? नो सर, नो डाउट फ्रॉम माय साइड, एक्सेप्ट वो हमारा जो रह गया है एज्यूम कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू 21%, वो हमारा रह गया है, इसलिए बाकी रहे इसमें नहीं डाउट गया, वो भी कराया था. करना है। रह हाँ गया वही जैसे हमारा पेंडिंग, हाँ हमारा करना पेंडिंग है, तो हम लोग सेकंड लेवल में करने वाले हैं. करेक्ट. ठीक है सर, उसके अलावा कोई डाउट नहीं है इसमें. Anybody else last time? ठीक है, I take that as no doubts. Moving to this Excel, anything in the assumption? Again, हमने इसमें ये पार्ट नहीं किया है. इनफैक्ट यही नहीं किया पूरा, इसको रहने दो. हाँ जी. Apart from this, anything in assumption? नो फ्रॉम माय. Hello. Yeah, sure. Sir, can you please repeat waterfall model? Waterfall assumption में थोड़ा है. Sir, assumption का नहीं, overall. We are going sheet by sheet. We'll come to that. Okay. Cash flow में कराता हूँ. Okay, sir. Anything in assumption, Ishan? Assumption sheet No, sir. में worksheet है? No. ठीक है. Last time, anybody else? Anything in assumption sheet? Okay. In that case, we'll move to the next. Anything on the income statement? नो सर. Okay. Cash flow. So cash flow में Ishan has out on waterfall cash flow. So what do you mean waterfall cash flow? Waterfall cash flow is you are trying to ascertain how much cash you have after paying off your expenses and everything, and then finally you're deciding how much loan you will pay. In a typical modeling, your EMI amount is generally fixed. Your EMI amount is generally fixed. In this, your EMI amount or your loan repayment is dependent on availability of cash. So which means if you have more cash towards the end after paying off your expenses and taking care of the other commitments, if you have more cash, you will pay more. If you have less cash, you will pay less. And if you don't have any cash, so probably you will not pay. That's what the waterfall cash flow is. So what we've done, Okay. so what we've done in this, we have
created this. ठीक है, कैश फ्लो में तीन सेक्शंस होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. Financing. And so this is my operations, this is my investments, this is my financing, and this is waterfall. So यहाँ तक till this point we are finding out कि लोन रिपेमेंट करने से पहले, बिफोर लोन रिपेमेंट, हमारे पास कितना पैसा बचा है. Okay. और ये जो रिपेमेंट अमाउंट है, ये वाली, दिस विल डिपेंडेड ऑन कितना पैसा बचा है. तो अगर ज्यादा पैसा बचा है तो मैं ज्यादा पेमेंट करूंगा, नहीं बचा तो मैं नहीं करूंगा. इसलिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे रीपेमेंट में, वाटरफॉल का ये फॉर्मूला होता है. तो हमने क्या किया है, मुझे कितना पेमेंट करना है, मुझे इतना पेमेंट करना था, बट मेरे पास कितना अवेलेबल है वो C12 में लिखा हुआ है. C12 ये रहा, कितना अवेलेबल है. तो इन दोनों का मिनिमम लगाया है. दैट इज व्हाट वाटरफॉल इज. Okay. जितना मेरे पास बचा है और जितना मेरे को पे करना है, उसमें जो भी मिनिमम होगा वो मुझे पे करना है, राइट? ऑफ कोर्स. या ओके. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन इन कैश फ्लो? सर ये हर मतलब सिर्फ ये एक केस स्टडी पे नहीं, हर एक केस स्टडी पे एप्लीकेबल होगा ना वाटरफॉल कैश फ्लो? नहीं, डिपेंड करता है. जनरली हर किसी में नहीं होता है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है. तो जनरली सब जगह नहीं होता. सब जगह टिपिकली ट्रेडिशनल सिंपल लोन्स होते हैं. दैट यू हैव टू रीपे द अमाउंट. जैसे आप होम लोन लेते हो, आपका होम लोन भी वाटरफॉल थोड़ा होता है. तो द बैंक डज नॉट टेल यू कि रीपेमेंट करना अगर पैसा हो तो. ऐसा नहीं बोलता. ऐसा बोलता है क्या बैंक आपको? नो सर. सर ये इंडिया में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है नॉर्मली? क्या चीज? ये जो वाटरफॉल कैश फ्लो है इंडिया में, क्योंकि ऐसे मैंने कहीं सुना नहीं कि इंडिया में आप पैसा मीन्स आपके पास अवेलेबल है तो आप रिफंड करो, रीपे करो. तो ये एप्लीकेबिलिटी इंडिया में है? हाँ, तो इतना टिपिकली नहीं होता. दैट्स व्हाट इट सेड कि इतना टिपिकली ये नहीं कि हर transaction more, but yes, there are certain projects that generally get such kind of an complications in India also. सर ये इवन रियल एस्टेट में एक एस्क्रो मॉडल होता है जिसके अंदर लाइक whatever money comes in, so certain percentage of that amount is gone to the lender and balance is available with the client. और उसका appropriation, there are certain banks who do it towards first towards interest and balance towards repayment of loan, irrespective of what the loan repayment schedule is. Is that a sort of waterfall, or Yeah, that comes under different thing? that's one sort of a waterfall, but that's waterfall more from the lender side, not from the borrower side. This is more from the borrower side. Okay. सर इनकेस यहाँ पे ऐसे अगर सिचुएशन आता था कि आप एटलीस्ट इंटरेस्ट पे करो, तो प्रिंसिपल है आप वो मुझे बाद में कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट एटलीस्ट आप हर एक ईयर पे करो. तो सर इसमें कैसे हो सकता था ये फॉर्मूला या ऐसे? नहीं, अगर वैसे होता तो जो हमने सम दिया यहाँ पे, जो मिनिमम है, अगर ऐसा होता कि इंटरेस्ट पे करो तो जो मिनिमम अमाउंट है वो मैं इंटरेस्ट लेता, नॉट अवेलेबल कैश लेता, और वो वाटरफॉल नहीं रहता, वो फिर वाटरफॉल नहीं रह जाता. ओके ओके. ओनली स्मॉल एडजस्टमेंट अभी जो यहाँ पर है, मिनिमम में मैंने C12 लिया हुआ. C12 क्या अवेलेबल कैश, मैं यहाँ पे C12 की जगह इंटरेस्ट लेता कि उतना तो पे करना ही पड़ेगा.
हाँ उतना तो पे करने पड़े ऐसे, क्योंकि नॉर्मली बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है। हाँ बट वो वाटरफॉल कैश फ्लोज नहीं होते हैं ना टिपिकली। ओके ओके ओके। ठीक है सर, क्लियर। Okay. Any other question on the cash flow? क्लियर फ्रॉम माय साइड। Sir, what is free cash flow? Sorry? Free cash flow, sir. Free cash flow? Free Yes, sir. cash flow कहाँ कराया मैंने अभी? No, I'm just asking generally because I heard this word. हाँ तो हम करेंगे लेवल 2 में करेंगे, अभी सिखाया नहीं आपको। Okay. So, ये cash flow related, will there be any other cash flow models which we'll be working on, or this is the only one? दो ही होते हैं, एक होता है वाटरफॉल, एक होता है ट्रेडिशनल जो विदाउट वाटरफॉल होता है। ट्रेडिशनल वाला आप कर आए हो केपीएमजी के आपके सेशंस हुए थे कैश फ्लो के, और नॉन ट्रेडिशनल मैंने करा दिया। दीज आर द ओनली टू कैश फ्लो दैट इज पॉसिबल। Sir, in terms of complication, जैसे ये cash flow हो गया, इसमें there's only few line items. जैसे कुछ cash flows होते हैं उसमें। हाँ तो इसमें 50 लोग, जैसे मैंने अभी एबिटा को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। Correct. अगर मुझे रोज बढ़ानी है तो मैं इसको अलग अलग करूंगा, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का टैक्स 1 माइनस टी। वो तो डिपेंड करता है आपको कितना रोज बढ़ानी है, बढ़ाते जाओ। अब जैसे यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंसेस एक साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब एक ही कैटेगरी में डाल दिया, सो आई कैन पुट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन वन कैटेगरी, करेक्ट। लेट्स assume you have 20 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, आप अलग अलग लिख लो उनको। दैट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज जस्ट कि आपको किस तरीके से अपनी बैलेंस शीट में, जैसे फिक्स एसेट होता है बैलेंस शीट में, somebody might say बैलेंस शीट फिक्स एसेट टोटल, somebody say लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, अलग अलग लिखोगे आप, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना होता है या वो रो इंक्रीज करना होता है? कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, सो इट वाज अ रेरा कैश मॉडल। उसमें कैसे होता है, जैसे रेरा के अंडर होता है कि 100% आया तो 70-30 होता है, और उसके बाद दैट 70% इज अलाउड ओनली व्हेन सर्टन फर्स्ट यू हैव टू एक्सपेंड एंड देन यू गेट टू विड्रॉ दैट अमाउंट। सो वो काफी सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है उसमें। तो वाटरफॉल ही है ना, वो वाटरफॉल ही तो है। आप यहाँ हाँ, पे जो बेसिकली कंडीशन लगा वाटरफॉल ही रहे हुआ। हो, आपने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया, आपने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि मेरे पास जितना पैसा बचा है उस पैसे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से पेमेंट होगी। अब आप बोल रहे हो जो रेरा में होता है कि इट इज नॉट लिंक टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैट, इट इज लिंक टू द कंस्ट्रक्शन का जो स्टेज कंप्लीशन है उस पे पेमेंट होती है। करेक्ट। करेक्ट, कि अगर 10% कंप्लीट हुआ तो 10% की पेमेंट होगी। अगर जब प्रोजेक्ट आपका या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो 20% कंप्लीट हो जाएगा तो 20% पेमेंट होगी, 50 हो जाएगा 50 होगी। तो रादर देन लिंकिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, मैं यहाँ पे C12 में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की जगह परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से लिंक करूंगा कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। 20 हुआ तो मैं 20% दूंगा, 50 हुआ तो 50% दूंगा। ओके, वो यही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू so the rule जैसे remains the same. एक्सेल मॉडलिंग रिमेन सेम, एक्सेल मॉडलिंग Okay. रिमेन सेम। व्हाट इज मॉडलिंग कि दो तरीके के कैश फ्लोज हैं। एक कि आप पेमेंट कर दो लोन की विदाउट बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, जो ईएमआई फिक्स हो गया इतना तो आपको पे करना ही है। दूसरा है वो जो अमाउंट पे आपको पे करना है वो किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, वो अवेलेबिलिटी कैश हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो, वो किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। आप उस वेरिएबल के साथ फॉर्मूला लगा दो,
इस केस में हमारा जो वो वेरिएबल है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। जो एग्जांपल आप ले रहे हो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया। स्वप्निल, इज दैट क्लियर और कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, अभी क्लियर है। इफ आई हैव एनी डाउट तो आई आस्क। हाँ हाँ, उसमें सेम करो, सिर्फ एक आपको एक चीज एक रो और डालनी पड़ेगी, वो जो मॉडल होता है उसमें रादर देन दिस आपकी होगा परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन, परसेंटेज करेक्ट। कंप्लीशन करके होगा। ठीक है, वो आपको एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके बाद बाकी सब सेम ही है, सिर्फ आपने जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश से लिंक किया, रादर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ये लोन रिपेमेंट का जो है आप परसेंटेज से लिंक कर दो, बस कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप करके देखो, कुछ आए तो पूछ लो। ठीक है सर। एंड एनीथिंग एल्स लास्ट टाइम ऑन द कैश फ्लो? ठीक है, एनीथिंग इन द बैलेंस शीट? नो सर। No, sir. So I'm assuming that given you don't have anything in P&L, cash flow, and the balance sheets, the remaining worksheet like construction schedule, capex schedule, depreciation schedule, I'm assuming that anyways means that is good to go, because अगर doubt होता तो वो balance sheet P&L में आता। और let me ask this as well. Any doubt in any of the other worksheets? So हमने three financial statement discuss कर लिया, P&L, balance sheet and cash flow. So anything else in any of the worksheet, like depreciation, funding, debt schedule, anything else in any of the worksheet? सर राहुल है। Yeah. सर थोड़ा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल आई डिडंट गेट दिस थिंग, लाइक एक्सेल का पार्ट है वो। क्यूमुलेटिव डेज ऑफ वर्क फॉर सेकेंड ईयर, थोड़ा उस साइड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। Construction. बोलिए, आप ये 456 की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो सेकंड फेज का क्यूमुलेटिव डेज ऑफ वर्क ड्यूरिंग द ईयर के बाद वाला, सेकंड दोनों, हाँ वो और उसके नीचे वाला। कौन सा अमाउंट बोलो राहुल? Amount या the 275 cumulative days as in working days और 365.90। ये वाला आपका फेज 1 का आ गया है? हाँ सर, फेज 1 का आ गया है। तो फेज 2 का भी वही करना है आपने। एक्सेल में कोई फॉर्मूला देखो ठीक से नहीं लगाया आपने। और आपका फेज 1 आ गया, फेज 2 सेम ही है, सब डिफरेंस इतना है कि फेज 2 में, फेज 1 में जो आपकी एजम्पशन शीट में फेज 1 की स्टार्ट डेट है, वहां से स्टार्ट करना है। फेज 1 के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, और फेज 2 के लिए अप्रैल 17 से स्टार्ट करना है। बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। करके देखो, अपने एक्सेल में फॉर्मूला गलत लगाया है, आपने कोई सेल रेफरेंसिंग या कोई सेल गलत चूज किया है, या डेट चेंज नहीं करी है। फेज 2 में अप्रैल 17 होगा, फेज 1 में 1 जन 16 होगा। करिए। ओके सर, चेक करता हूँ। Sir, days of work during the year for construction phase 2, जो 2016 का फिगर है उसको सेम ना 2018 माइनस 2017 प्लस 1। सॉरी, दोबारा बोलो।
तो ईशान एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, क्या क्वेश्चन है? Sir Rahul asked this question. So तुमने पूछा है? हाँ राहुल। हाँ, डेज ऑफ वर्क ड्यूरिंग द ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन फेज 2 जो 2016 का वैल्यूएशन है वो उधर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। The both zeros. Days of the work during the year construction phase 2 पहला 2016 के लिए। फॉर्मूला देखो एक बार। सर डेज ऑफ वर्क क्यूमुलेटेड डेज आ गया जीरो आपका? हाँ सर। तो उसको तो फिर रेफरेंस ही किया, फिर क्या उसमें करना? हाँ वही मैं मिस्टेक कर रहा था। ओके थैंक यू। Anything आ गया else? सर। ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर केपेक्स ऑफ फेज 1 और फेज 2 थोड़ा एक कर सकते क्या? केपेक्स फेज नहीं 1 फेज तो टोटल किया हुआ है ना, ये वाला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर वो और दूसरे साइड के दोनों। सो वंस यू गेट डेज ऑफ वर्क, तो आपका टोटल केपेक्स फेज 1 का कितना है? फेज 1 का टोटल केपेक्स आपका, फेज 1 का टोटल केपेक्स आपका 150 CR है। ये 150 CR डिवाइड बाय 456 करूंगा तो पर डे का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगा। हाँ सर। और इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज कर दो। ओके गॉट इट सर।
सर मेरा 2016 आ रहा है, 2017 और 18 थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। थोड़ा एक बार फॉर्मूला उसको क्लिक करके दिखा सकते हैं कौन सा नंबर नहीं आ रहा आपका? क्या? 29.6, 45.2। मिल गया सर, थैंक यू। Hey, last time, anything else on the construction or capex schedule? फिर ये अगर हम assumption शीट में अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर चेंज करते हैं तो टेक्निकली इट शुड नॉट अफेक्ट एनीवेयर ना, इट शुड बी It should ना, that's what we want. अगर आप date of commencement change करोगे यहाँ पे, your calculation should change, and it will, in the way I have only created the this only model. the calculation right, only the calculation will change, but balance sheet should tally, P&L should be according to the schedule, right? So मुझे ना I didn't understand what does बैलेंस that शीट mean. सर If I इसमें अगर change, फेज if वन, I change, हाँ so if I change 16 the को start 18 में time, करता हूँ, if I do this, if I started by say, not 16 but 18, तो मेरा बैलेंस शीट में इक्विटी 85 जो क्रोर्स है उसका डिफरेंस आ रहा है थ्रू आउट। difference are at throughout means. So if we change start date from 16 to 18, we change this to 18, 2018, Jan 18, construction phase 1 start date. तो सर बैलेंस शीट में सही तो आ रहा है। हाँ ये सही आ रहा है, मेरे इसमें 85 का डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक देयर सम फॉर्मूला एरर। वो ये आपने कुछ इक्विटी का सही फॉर्मूला नहीं कौन डाला। सा डाला है सर? इक्विटी का इफ यू कुड सही, आपका अजम्पशन एनालिसिस C14 85 करोड़ इक्विटी। यहाँ पे गिवन ओके था। ओके ओके, आई हैड पुट इट ऑन फंडिंग।
Okay, sir. Done. Last time, anybody else, any other question in any of these sheets? सर ये This is थोड़ा the फिर से surprise. एक्चुअली मेरा नेट ये हो गया था ये सर आपने जो दिखाया था ना ये जो डेट चेंज करके जो हो रहा है जो अपने को डिफरेंस आ रहा था हाँ, वो उसका एक्सेल में कुछ इशू है। अगर तुम्हारा चाहिए आ रहा है तो why don't you why you नहीं, मैंने want to यही क्या जस्ट एक्चुअली क्या है, मैं समझा नहीं मुझे क्या ये था इसलिए कुछ नहीं। अगर आप डेट चेंज करोगे, जो स्टार्टिंग डेट है ये 1 Jan 16 था, अगर आप चेंज करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप चेंज होनी चाहिए। उसकी नहीं हो रही थी। ओके ओके ये 1 ओके Jan 16 है ना, ओरिजिनल हमने जो हाँ हाँ कैलकुलेट किया, वो 1 Jan 18 कर रहा है तो उसका चेंज नहीं हो रहा। ओके ठीक है आप चेंज करके देखोगे तो आपका सब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो गड़बड़। ओके हाँ जी, anybody else, any other question? अच्छा, एक honest I want an honest reaction to this, and I hope आप honestly reaction दे मुझे। कितने लोगों ने ट्राई किया है? Because this is very surprising to me, because मैंने जो भी एक दो बैचेस को कराए हैं ये वाला एडवांस, जनरली एज आई टोल्ड यू इतना एडवांस मैं नहीं कराता हूँ, और मोस्ट ऑफ द बैचेस को यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द बैचेस। बट जो जिनको भी मैंने कराया है, जब मैं डू दिस डाउट क्लियरिंग, there's ample queries that comes in, and that's the reason I gave this opportunity to your batch also. But I don't know, is this कि आपको टाइम नहीं मिला because Monday to Friday आपका ऑफिस था and you not got a time to play with this, to try and do this permutation combination, which I understand. Is that the reason, और आपने कर लिया है फिर भी डाउट नहीं है? And again I would hope that आप honest reaction दे, because this is important for me to decide next कैसे क्या करना है। Have you, कितने लोगों ने किया था कि हाँ सर मैंने अच्छे से कर लिया है, सब कुछ ट्राई कर लिया आपने, जैसे बोला था हिट एंड ट्रायल करो, एक अलग से क्रिएट करो, वो कर लिया है, या अभी नहीं कर पाया मैं आज करने वाला हूँ बिकॉज मुझे मंडे टू फ्राइडे ऑफिस था, मुझे टाइम नहीं मिला, व्हाटएवर? क्या किस कैटेगरी में हो आप लोग? सर ट्राई नहीं किया है मैंने। सर मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी। ठीक है, राहुल, ईशान और बाकी लोग? तो 2-3 परम्यूटेशन ट्राई किए थे, उसमें तो ठीक आ रहा था, बट देयर आर कपल ऑफ मोर व्हिच आई ट्राई, तो आज मैं ट्राई करूंगा। और या थर्ड कैटेगरी मत क्रिएट करो, दो ही कैटेगरी है, मैंने कर लिया या मैंने नहीं किया। अब इसमें से आप पिक एंड चूज करो आपको किस में जाना है। थर्ड कैटेगरी कुछ नहीं है, 40% करा है, 70% करा है, या तो हाँ है या ना है। कौन सी कैटेगरी में हो आप? नो। ठीक है, 3 और बाकी लोग? नॉट येट सर। ठीक है, नो सर। और नो सर No, sir. No. मैं रिवर्स पूछता हूँ, कोई ऐसा है जिसने किया है ये बता? ठीक है, that's exactly the vibe that I was getting, correct? जो आप क्वेरीज पूछ रहे हो उस क्वेरीज के नेचर से मुझे पता लग रहा है कि ये करा ही नहीं है आपने। This is not an easy time, because I think some of you might not even probably getting the household support as well. So ठीक है, वो सब मुझे नहीं जाना है, बट ठीक है। सो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज, मैंने कल भी डाउट क्लियरिंग रखवाया है, ठीक है। सो बिकॉज आज का डाउट क्लियरिंग 4 आवर्स का था, इसीलिए मैंने उसको स्प्लिट कराया 2 आवर्स, बिकॉज मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आप लोग नहीं करोगे, देन रादर देन वेस्टिंग द एंटायर 4 आवर्स डजंट मेक सेंस। सो इसलिए मैंने कल का एक स्प्लिट करा दिया, सो दैट जिन लोगों ने नहीं किया, which is I think 100% इन योर बैच, किसी ने नहीं किया सारा, तो आज प्लीज आप लोग का टाइम स्पेंड करो इस पे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में बताया था, इस फाइल का एक कॉपी बनाओ और उस वर्जन पे डोंट टच द ओरिजिनल वर्जन,
जो एक आप कॉपी बना रहे हो उसे प्लीज ट्राई करिए, दोबारा क्रिएट करना है दोबारा क्रिएट करिए, जहां जहां आपको नहीं हो रहा, वैल्यूज मैच नहीं कर रही, वो एक पेन एंड पेपर पे आप प्लीज नोट करते जाओ ये इश्यूज आ रहे हैं. दिस इज द वे you need to attend these doubt clearing sessions. The doubt clearing session is not कि आप बोलो सर हाँ ये बता दो वो बता दो ये बता दो वो बता दो. I don't think that's the way it has to be. It has to be कि सर ये मैंने ट्राई किया, ये मैंने चेंज किया, ये मेरी क्वेरी आई, ये स्पेसिफिक इशू है, ये मेरा मैच नहीं हुआ, एंड देन दैट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद एरर आए, मैच नहीं हुआ, दैट्स ओके. Nobody is that's not an issue. In fact, I want कि वो issues आए या errors आए so that I can explain आपको और उसकी complications समझ आए. ठीक है? So is that okay, guys? आज आप कर पाओगे so that we can leverage and make use of tomorrow's doubt clearing session. Can we please agree to this? सर ऐसे पूछ रहा हूँ कल और होपफुली इफ सके तो इफ यू परमिट नेक्स्ट वाला जो सैटरडे संडे है, इफ माय बैचमेट आल्सो वुड लाइक टू और कैन नेक्स्ट वीक भी थोड़ा रख सकते क्या, क्योंकि मेरा आज तो नहीं होगा क्योंकि आई हैव वर्क टुडे एज वेल. कभी खत्म नहीं होगा वो राहुल, देखो कभी खत्म नहीं होगा. आई एम मोर देन हैप्पी आप नेक्स्ट वीकेंड पे ले जाओ, बट एज आई टोल्ड यू द चैलेंज इज जब तक आप ये खत्म नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. सो यू एज अ बैच गाइस डिसाइड आपको कल खत्म करना है. मेरा सजेशन ये है कि कल का टारगेट करो, कल खत्म करो. ठीक है, कुछ छोटा मोटा है तो हम पूछ सकते हैं सो दैट एटलीस्ट वी कैन कंटिन्यू. बट इफ यू से नेक्स्ट सैटरडे भी कंटिन्यू करना है तो ठीक है, बट स्टिल स्टोरी विल स्टिल रिमेन सेम. करेक्ट कि आप नेक्स्ट वीक भी काम नहीं कर पाओगे अगर आप इस वीक नहीं कर पाए तो. बट इफ यू गाइस ओके कि नेक्स्ट वीक करना है तो आई एम मोर देन हैप्पी. कल आपके पास एक है, मैं तामनी को आई कैन ट्राई कि आपको जनरली टेक्निकल डाउट क्लियरिंग एक सेशन होता है, इसको दो में स्प्लिट करा. आई कैन ट्राई एंड सी कि दामनी अगर मानता है. बट आप लोग को लग रहा है कल तक नहीं हो पाएगा? What I understand, what does the silence means? हाँ ना, what does that mean? Rahul, I don't think anybody is favoring your idea. So let's keep this for tomorrow. ठीक है, अगर आपको कुछ छोटा मोटा हो तो we can still try and take the next class. But I think reacts to this or anybody starts supporting, I don't see anybody requesting for further extension to next week, which in turn means कल का टारगेट है. तो प्लीज आप इसको रैप अप करिए. ठीक है, जो भी आप वो टेस्ट करने हैं वो प्लीज आप आज लोग कर लीजिएगा सो दैट वी कैन टेक इट आउट टुमारो. ओके सर, चलेगा. in that case I have no choice, but बाकी मैं स्टार्ट में आप ऑर्डर नहीं करा सकते जब तक ये हम रैप अप नहीं कर सकते, बिकॉज़ कल नेक्स्ट पार्ट इज पर डिपेंडेंट है. ठीक है, सो देन इट विल मेक सेंस कि आप लोग इसको टेस्ट करो एंड देन वी कनेक्ट टुमारो टू डिस्कस. ठीक है, लास्ट टाइम बिफोर वी क्लोज कुछ पूछना है? नो सर. चलिए ठीक है. Sir, yeah, sure. Sir, actually, I have gone through yesterday one job descriptions for financial analyst position, and in the same case study, हम लोगों ने बहुत कुछ उससे related ही किया है. So क्या मैं उससे related कुछ पूछ सकता हूँ अभी? हाँ पूछो. सर जैसे वहाँ पर था identify all levels of debt tranches, कॉर्पोरेट एंड फंडिंग स्ट्रक्चर. तो जो फंडिंग स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बनाया फंडिंग स्ट्रक्चर, सो क्या इसी लेवल पे बात हो रही है वहाँ पे? करेक्ट. ओके,
And what about मैंने mapping आपको guarantees मैंने and मैंने collateral? आपको हाँ, बिफोर आई गो कम टू दैट, मैंने आपको केस स्टडी में जब डिस्कशन करा था तो आपको मैंने ये भी सिखाया था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 15%, कहाँ गया, हाँ, मैंने आपको ये भी सिखाया था 15% कैसे आया, याद है आपको? इसमें प्लस माइनस करवाया था, Yes, sir. देखना पुराने नोट्स देखना, आपको मिल जाएंगे। तो वो भी फंडिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, जिसको मैंने आपको कहा था, इसको डेट स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। And ये दोनों उसका second point ये था waterfall analysis to determine priority of debt structure, debt आपको सिखा recovery दी, scenarios and at all debt levels. So तो वो भी हमने हम कर लोगों दी। ने इसमें किया हुआ है, right? या Okay. मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रियल ट्रांजैक्शन कराई है आपको। Yes, sir. वो सारी मैंने मैच की थी कल अगर। हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई एंड मेक यूज ऑफ इट। यू एज अ बैच इज एबल टू गेट दिस टैलीड बैलेंस शीट इन कपल ऑफ अटेम्प्ट्स, जो आसानी से नहीं होता। सो व्हाई यू गाइस नॉट कमिंग टुगेदर एंड पुटिंग एन एफर्ट ऑफ टेस्टिंग दिस अगेन? आई अंडरस्टैंड मंडे टू फ्राइडे था, बट लेट्स सी। आई होप कि आज आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सबकी बात कर रहा हूँ, एंड टुमारो वी कैन क्लोज दिस पीस। ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के करियर्स के लिए। ये रियल ट्रांजैक्शन है और इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको, इससे नीचे ही मिलेगा। ट्राई एंड पुट दिस, ये आपने एक टिप, एक्सट्रीम टिप को टच करने की कोशिश करी है। सो एंड अगेन ईशान, जो ईशान फीडबैक दे रहा है, दैट शुड आल्सो हेल्प यू कि उसने जो मार्केट में आई डोंट नो व्हिच कंपनी, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको जो जेडी मिला है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर ईशान ने केस स्टडी नहीं करी होती तो वो जेडी को भी नहीं समझ पाता। करेक्ट ईशान? Yes, sir. रिस्पॉन्स तो देने की बहुत दूर की बात है। नाउ ही नोज व्हाट इज वाटरफॉल, ही नोज कि डेट puts you in a very good position to start making an edge vis-a-vis your peers जो इंटरव्यू में compete करने के लिए आते हैं। Because generally at your level जो लोग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे उनको जनरली सीखने को देखने को नहीं मिलता। आप गूगल करके देखना, आपको आसानी से नहीं मिलेगा सब कुछ। ठीक है, एनीथिंग एल्स ईशान? No, sir. Sir, I gone through the job description of Moody's Corporation. There's an open position in the financial analyst. Yeah. तो आप लोग देख लीजिए, मूडीज की बात करें, सो मूडीज इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सेगमेंट्स ऑन द मॉडलिंग साइड। सो वो ऑर्गेनाइजेशन के जेडीज में वही पीसेस है जो हमने किए हैं। सो दैट शुड गिव यू सम मोटिवेशन टू सी इट्स का इंपॉर्टेंस क्या मार्केट। Okay, sir. Thank you, sir. चलिए, ठीक है guys, so will I not try and drag this. We'll call it close for today, but again I would request you please ensure कि जो मैंने आपको टेस्टिंग बोली है या जो मैंने आपको चीजें बोली करने को करके, please let's try and make use of tomorrow's doubt clearing session rather than this letting it go easily. चलिए, thanks, bye. Sir, 1 minute. Yeah. सर, वो जो डेट चेंज किया था ना, कैन यू जस्ट चेंज द डेट अगेन एंड मूव टू द बैलेंस शीट वंस, 16 के 18 करके। फिर चेंज कर दिया मैंने, मैं बैलेंस शीट की तरफ जाता हूँ। हाँ, सरप्लस कैश सर, इसमें अगर 18 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सर कैश फ्लो में एक बार, अबे अगर तुमने फर्स्ट 16 को काम शुरू नहीं किया, फर्स्ट जन 18 को किया, तो यानी 16 में कोई खर्चा नहीं किया ना तुमने। करेक्ट। सो वो पूरा सरप्लस कैश हो पूरा गया। सरप्लस कैश पड़ा हुआ है वो। तो एक बार कैश फ्लो में इफ यू कुड गो, कैश फ्लो में इक्विटी इन्फ्यूज जो है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे हो जाएगा फिर 16 से ही। दिस शुड मूव टू 18 ना। स्वप्निल, यही टेस्ट करने को बोला है आप लोगों को मैंने,
कि आप टेस्ट करो और देन वो जो आप फाइल बना रहे हो जो सेकंड हम्म। वर्जन उसमें अपने हिसाब से जो आपको चेंज करना है वो करके देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा एंड देन दैट्स वेयर वी विल डिस्कस टुमारो कि आप वो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो बिकॉज अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तो जो बाकी लोग को वो टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगी आप समझ रहे हो Okay. आपने पकड़ लिया जो ट्रिक है वो आपने पकड़ लिया बट आई डोंट वांट टू एक्सपोज टेल द ट्रिक टू एवरीवन सो दैट वो लोग वो टेस्टिंग ही नहीं Correct. करते वो Okay. ट्रिक Okay. आपने Got पकड़ it. लिया वो ट्रिक को एक्सेल में ठीक करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर हो जाता है बैंग ऑन देन आपने ट्रिक भी पकड़ लिया और एक्सेल भी एडजस्ट कर दिया Correct. अगर नहीं कर पाते तो वो डाउट क्लियरिंग में वही पूछने को बोल रहा हूँ बट अदर्स को टेस्ट करने दो अभी ट्रिक मत बताओ ठीक है sir. Okay. एनीथिंग एल्स चलिए ठीक है नेक्स्ट विल कनेक्ट टुमारो प्लीज कर लीजिएगा जो मैंने आपको प्रैक्टिस और चीजें करने को बोली सो दैट वी कैन इंश्योर कि कल आपका ही कंप्लीट हो जाए ठीक है चलिए थैंक्स बाय Thank you, sir.